barber. Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a great storyteller. Each night, she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian stories and Arabic folk stories. This story is one of the stories from the Arabian Nights. So let's start. Read this story about a man who cannot stop talking. This is a story about a man who cannot stop talking. Do you know this is a story about a barber who was a great talker? Instead of doing his work, he was talking continuously and really annoyed the sultan. So it is one of the most interesting story. Have a look. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. Once the sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. The sultan got angry. It means the story is about a barber living in the city of Kashgar. Everyone knows the barber to be a great talker. A sultan wants to get a haircut one day, so he calls the barber to do the job. However, as soon as the barber reaches, instead of doing his job, he starts talking non-stop. Moreover, the sultan gets fed up with his behavior and orders him to leave with the payment without haircut. मीन्स एक बार काशगर शहर में एक बार्बर रहता था. बार्बर मीन्स नाई. एक बार्बर रहता था हु वॉज अ ग्रेट टॉकर, जो बहुत ज़्यादा बातूनी था. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. एक बार सुल्तान ने, वहाँ का जो सुल्तान था हुज नेम वॉज शाहरियर, जिसका नाम था शाहरियर, तो सुल्तान ने बार्बर को बुलाया अपने हेयर कटिंग के लिए. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप. और जो बार्बर था वो शेविंग करने के बजाय कंटिन्यूअसली सुल्तान से बातें कर रहा था. द सुल्तान गॉट एंग्री. अब सुल्तान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए उससे, उन्हें गुस्सा आ गया. When are you going to stop talking and begin to do your work? The barber replied, You do me an injury by calling me chatterer. For everyone says I am very quiet. गुस्से में राजा ने कहा, सुल्तान ने कहा, When you are going to stop talking, तुम बातें करना कब बंद करोगे? And begin to do your work, और अपना काम कब शुरू करोगे हेयर कट का? The barber replied, बार्बर ने जवाब दिया, You do me an injury by calling me a chatterer. बार्बर ने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने मुझे बातूनी कहा. For everyone says I am very quiet. सब कोई तो कहते हैं कि मैं बहुत शांत रहता हूँ. I have 6 brothers, whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं, उन्हें आप चैटरर, उन्हें आप बातूनी कह सकते हैं. Their names were बगबन, बगबूरिया, बगबक, अलकूस, अलनशी, शाकाबक. One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech, and they are all great talkers. बार्बर ने कहा कि मेरे 6 भाई हैं जिन्हें आप बातूनी बोल सकते हैं. उनके नाम हैं बगबक, अलकूस, अलनशी, शाकाबक. ये उनके नाम हैं इस तरह से. एक जो है वो हम्बैक है. हम्बैक मीन्स जिसकी पीठ झुकी हुई होती है, कुबड़ निकला होता है. सो वन इज हम्बैक. मेरा एक भाई जो है वो उसके कुबड़ है. वन इज टूथलेस, एक के तो दांत ही नहीं है. वन इज हाफ ब्लाइंड, एक जो है वो आधा अंधा है. वन इज क्वाइट ब्लाइंड, और एक थोड़ा अंधा है. वन इज डेफ, एक बहरा है. एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और बाकी के बोलने में थोड़ी बहुत समस्या है. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो मेरे सारे भाई बहुत बातूनी हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली,
लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, और मैं बहुत शांत रहता हूँ, अपने शब्दों को बचा करके रखता हूँ। इज इट? सो फर्दर द बार्बर डज नॉट एग्री टू दिस and insists that he will finish the job. Despite this, the barber keeps on talking about something or the other, about his brothers also, and the Sultan tells him many times to stop talking and do his job, but all in vain. The barber tells him about his brothers as the Sultan starts getting angry. And the barber decides to start shaving. Then he decides to start shaving when the Sultan got angry. And instead of doing his job, he started talking continuously, non-stop. He told everything about his brothers, about his family, about himself also to the Sultan. Even then, Sultan was not interested in all these things. But the barber, who was a great talker, बहुत ज़्यादा बातूनी था, so he started talking continuously. When the Sultan got angry and said, stop talking and do your job, then he started shaving. But as his nature, instead of doing his job, again he started talking. Let's see. कि आगे क्या हुआ. Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and sent him away. I will not be shaved today. My master, cried the barber, it was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have shaved you. He then began narrating another story which lasted half an hour. Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. Now the king lost all his patience. After hearing all his stories, the king, the Sultan, lost all his patience and told his men to give 3 pieces of gold and send him away. But the barber, who was a great talker, he refused to leave. The Sultan told him that he has to go somewhere for an urgent piece of work. On seeing this, the barber started doing his work. But he could only half shave the head of the Sultan when he went out to see what time it was. So however, soon he stops half shaved halfway and goes out to check the time. He leaves the Sultan's head half shaved but comes back again to resume. We learn by now that the Sultan is in much hurry but does not disclose why. Even though the barber requests many times, the Sultan does not tell him why he is in such a hurry. To get rid of him, Sultan tells him finally that he is inviting some friends over for a feast. That is why he needs to go immediately. Give him 3 pieces of gold. The Sultan cried, losing all patience. अपना पूरा धैर्य खोते हुए सुल्तान ने आदेश दिया कि इसे 3 सोने के सिक्के दे करके जाने के लिए बोलो, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट टॉकेटिव पर्सन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है और अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है. आई विल नॉट बी शेव टुडे, आज मैं अपना हेड शेव कराऊंगा ही नहीं. माई मास्टर क्राइड द बार्बर, बार्बर ने चीख करके कहा, माई मास्टर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, वो मैं नहीं था जो यहाँ आया था. इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, वो आप थे जिसने आदेश दे करके मुझे यहाँ बुलाया था अपना हेयर कट कराने के लिए. सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, तो तब तक मैं आपके महल से नहीं जाऊँगा
जब तक मैं आपका शेव कर नहीं देता, क्योंकि अगर मैं बिना शेव किए चला गया तो ये आपके आदेश की अवहेलना होगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। आपने मुझे बुलाया था, आपने मुझे आदेश देकर बुलाया था, इसका मतलब अब मैं तभी जाऊंगा जब मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। और आपको पता ही है कि वो काम क्या कर रहा था, ही वॉज कंटिन्यूसली टॉकिंग, वो सिर्फ बातें कर रहा था और अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और कह रहा था दैट ही वॉज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, हिज ब्रदर वर टॉकेटिव पर्सन। कहता था कि वो बिल्कुल भी बातूनी नहीं है, उसके जो 6 भाई हैं वो सबसे ज़्यादा बात करते हैं। नाउ यू टेल मी, हु वॉज द ग्रेट टॉकर, हिज ब्रदर्स आर द बार्बर? लेट्स सी। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी, और इतना कहकर वो दूसरी कहानी सुनाने लगा सुल्तान को, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जिसमें लगभग आधे घंटे बीत गए। Stop making your fine speeches and let me go quickly. अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे जल्दी जाने दो यहाँ से। I have an affair of a greatest importance. मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है। I have to go out at noon. मुझे दोपहर तक पहुँचना है। Said the Sultan. सुल्तान ने कहा। अब जब बार्बर को ये पता चला कि सुल्तान किसी अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, अब वो चाहता था कि सुल्तान उसे बताए कि वो ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी में है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said. जब बार्बर ने देखा कि सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो उसने कहा, Oh master, do not be angry. I will begin to shave you. मेरे मास्टर, नाराज मत होइए। I will begin to shave you. बस मैं अभी आपका शेव कर देता हूँ। Saying this, ये कहकर he washed the Sultan's head and began to shave. उसने सुल्तान के हेड को पानी से भिगोया और शेव करना स्टार्ट कर दिया। लगभग उसने आधा बाल उनका शेव कर दिया था। But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said. लेकिन लगभग उसने 4 बार से ज़्यादा अपने रेजर को, रेजर में जो ब्लेड रहती है जिससे बाल छीले जाते हैं, उस रेजर को लगभग 4 बार से ज़्यादा सुल्तान के सर पर नहीं चलाया होगा और रुक गया। He stopped and said, रुक गया और बोला, My master, you are acting hastily in this manner. Go on shaving me. Speak no more. Ordered the Sultan. Then he started shaving, but when he half shaved the Sultan, he stopped his razor and again he started talking. And he said, My dear Sultan, please tell me why you are in a hurry. If you are telling me, then I will give my opinion on that matter. अब उसने सुल्तान से कहा कि आप मुझे बताइए कि क्यों आप इतने जल्दी में हैं, आपको शाम को कहाँ जाना है, क्यों जाना है, आप मुझे बताएंगे तो मैं अपने ओपिनियन आपको बताऊंगा, मैं अपनी राय आपको दूंगा। Go on shaving me. Speak no more. चलो फटाफट शेव करो और अब मत बोलना बिल्कुल भी। Ordered the Sultan. सुल्तान ने आदेश दिया बार्बर को कि now keep quiet and do your work. अपना काम करो और मुंह बंद करो और अब बिल्कुल भी मत बोलना। Be patient, said the barber. बार्बर ने फिर कहा, धैर्य रखिए सुल्तान। Perhaps you have not considered well what you were going to do. शायद आप बताना नहीं चाहते हैं कि आप शाम को कौन से काम के लिए जाना चाह रहे हैं। I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. अगर आप मुझे बता देंगे कि आप शाम को क्यों जाना चाह रहे हैं, जल्दी में कहाँ जाना चाह रहे हैं, तो मैं अपनी राय आपको ज़रूर दूंगा। Finish shaving at once. अभी के अभी पूरा बाल शेव करो। The Sultan exclaimed. सुल्तान अब चीख कर बोला। But लेकिन instead of doing this, the barber let the Sultan half shave to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried. जब सुल्तान ने चीख कर कहा कि अब बात करना बंद करो और मेरा हेड शेव करो पूरी तरह से, तो अपनी जॉब करने के बजाय, अपना काम करने के बजाय बार बार ये देखने के लिए चला गया कि
समय क्या हो रहा है, घड़ी देखने के लिए बाहर चला गया। और उस टाइम सुल्तान का जो सर था, हेड था, वो हाफ शेव था। आधे सर में बाल थे और आधे सर में बाल नहीं थे, वो शेव कर चुका था। तो हाफ शेव सुल्तान को छोड़कर वो चला गया टाइम देखने के लिए कि व्हाट वाज द टाइम। सो नाउ द बार्बर started giving advice to the sultan who was completely fed up by now mentioned that he said to the barber that he was giving a feast, he was giving a party some of his friends. Now the barber also recollected that he had also invited some of his friends at his home. So it is also a funniest part of the story. So be calm my master and you shall be shaved in a moment. बार्बर ने कहा कि माई मास्टर शांत रहिए, बस थोड़ी ही देर में आपका शेव हो जा रहा है। Said the barber and saying this he continued shaving the sultan. और ये कहते ही उस बार्बर ने फिर से सुल्तान के हेड को शेव करना स्टार्ट कर दिया। But while he was doing this, लेकिन जब वो ये कर रहा था, he could not stop talking. ये कर तो रहा था, वो शेव तो कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो बात करना बंद नहीं कर रहा था, बोलता जा रहा था। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful. बार्बर ने कहा कि अगर आप मुझे बता देंगे कि आप क्यों जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, तो मैं आपको अपनी राय दूंगा। He said, बार्बर ने कहा, The sultan was completely fed up. अब सुल्तान पूरी तरह से परेशान हो गया था by now and decided to satisfy the barber. और उसने निर्णय किया कि अब मैं इस बार्बर को सेटिस्फाई कर ही दूंगा। He told him that he was giving a feast to some of his friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. फिर फाइनली सुल्तान ने बार्बर को बताया कि वो किस वजह से जल्दी में है, क्योंकि उन्होंने शाम को अपने कुछ फ्रेंड्स को दावत पर बुला रखा है, इसीलिए उन्हें जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी है उन्हें। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed. जब बार्बर ने सुना फीस्ट के बारे में, दावत के बारे में, तो वो चीख करके बोला, That reminds me. Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. कल मैंने अपने 2-4 दोस्तों को बुलाया था घर पर आज लंच के लिए। But I had quite forgotten it and have not made any preparations. लेकिन मैं भूल गया और मैंने कोई तैयारी ही नहीं की महाराज। He said to the sultan. सुल्तान ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने की बात बताई। तब बार्बर को याद आया कि अरे कल उसने भी अपने 2-4 दोस्तों को खाने पर बुलाया था और वो भूल गया और उसने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है। He said to the sultan. सुल्तान को उसने बताया कि महाराज मैंने कोई तैयारी नहीं की है और मैं भूल गया, मैंने भी बुलाया था। The sultan who was at the mercy of the barber. अब सुल्तान को उस बार्बर पर दया आ गई। Was ready to do anything to be rid of him. अब उसे छुटकारा पाने के लिए सुल्तान सब कुछ करने के लिए तैयार था। Be quick and finish your work. जल्दी करो और अपना काम पूरा करो। The sultan replied. सुल्तान ने कहा, And you shall have all the food that has been prepared for me today. और तुम वो सारा भोजन यहाँ से ले जाओ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए बनवाया था। Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. Then the barber said to the sultan that please show me the foods. कि कृपया करके मुझे वो भोजन दिखाएंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि जो भोजन आप मुझे कह रहे ले जाने के लिए, क्या वो मेरे 5 दोस्तों के लिए सफिशिएंट है, कम तो नहीं पड़ेगा। I have enough food for you. The sultan exclaimed. सुल्तान ने फिर से चीख कर कहा कि मेरे पास जो भोजन है वो तुम्हारे 5 दोस्तों के लिए पर्याप्त है। But he ordered that all the food prepared for this feast be brought in. लेकिन सुल्तान ने फिर आदेश दिया कि सारा भोजन ला करके यहाँ रखा जाए जो फीस्ट के लिए बनवाया था सुल्तान ने। The barber looked over the food and said. अब बार्बर फिर से शेविंग करना छोड़ करके चला गया
फूड देखने के लिए, खाना देखने के लिए, और कहा दिस इज वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा है, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़े फल भी दे दीजिए, और सिर्फ फल ही नहीं, डेजर्ट भी चाहिए। डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील। डेजर्ट मीन्स जो हम खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं उसे डेजर्ट बोलते हैं। अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील। देन द बार्बर अगेन स्टॉप शेविंग एंड गो टू चेक द फूड, एंड ही सेड टू द सुल्तान दैट सुल्तान प्लीज give me some fruits also and some dessert. The Sultan in desperation, since his head was half shaved. अब सुल्तान बेचारा बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसका जो सर था वो आधा ही शेव हुआ था। Order that the fruits should also be brought in. उसने फिर से अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि जाकर के फ्रूट्स भी लेकर आओ इस बार्बर के लिए कि किसी तरह से ये मेरा शेविंग कंप्लीट करे। सो ऑन हियरिंग दिस द बार्बर रियलाइजेस दैट ही हैज़ इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स बट हैज़ नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस। नाउ टू डू अवे विद हिम द सुल्तान ऑफर्स हिम ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट टू हिम फॉर फीडिंग हिज फ्रेंड्स। इवन देन द बार्बर wastes more time in inspecting all the dishes which the Sultan offers to him. Now the Sultan is getting restless and agrees to fulfill every wish to the barber. Let's see आगे क्या हुआ. The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. The Sultan stamped his feet impatiently. But the barber did not hurry. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." Then the barber stopped shaving and went to examine each dish separately. This took up half an hour. और फिर बार्बर जो था उसने फिर से शेव करना बंद कर दिया और जो भी डिश आई थी उसको एक एक डिश को चेक करने चला गया सेपरेटली। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और ऐसा करने में उसने आधे घंटे लगा दिया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली। सुल्तान ने अपना पैर पटक लिया पूरी तरह से। अब वो धैर्य खो चुका था, अब उसके अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं बचा था सुल्तान में। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर को कोई भी जल्दी नहीं थी। सुल्तान भले ही जल्दी में था लेकिन बार्बर को बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। वो हर एक डिश को सेपरेटली चेक करने लगा और इसमें उसने आधे घंटे लगा दिए। अब सुल्तान ने अपना धैर्य पूरी तरह से खो दिया था। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप्ड सडनली एंड क्राइड, I never knew that you were so generous. After that, आधे घंटे बीत गए, फिर बार्बर ने फिर से अपना काम शुरू किया। He started shaving one more time, but when he started shaving, after few minutes, again he stopped and cried, "Oh Sultan, really you are a generous person." Generous means dayalu. Again he stopped his razor and said that Sultan, really you are one of the most generous person in the city of Kashgar. जैसे ही उसने रेजर उठाया, डिश को एग्जामिन करने में, हर एक डिश को चेक करने में उसने लगभग आधे घंटे लगा दिए। आधे घंटे के बाद जब वो वापस आया और उसने अपना रेजर उठाया सुल्तान का हेड शेव करने के लिए, और मुश्किल से कुछ मिनट ही उसने हेड शेव किया होगा और फिर अचानक से रुक गया। और रुक करके उसने फिर से बोला, क्या बोला कि आई नेवर नो दैट यू वर सो जेनरस, कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा दयालु हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फनी पार्ट ऑफ द स्टोरी विच आई लाइक द मोस्ट। एंड विद दिस स्टोरी यू कैन रियलाइज दैट useless speech is not good.
सो विद दिस स्टोरी वी कैन रियलाइज कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, उतना ही बोलें जितने की ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वालों की वैल्यू कम हो जाती है, लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से नहीं सुनते हैं कि ये तो हमेशा ही बोलता रहता है। बट जो लोग कम बोलते हैं हमेशा उनकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इट्स अ फैक्ट। सो ओवरऑल वी कैन से दैट यूजलेस स्पीच इज़ नॉट गुड। इफ स्पीच इज सिल्वर देन silence is sometimes gold. Now choice is yours. So with this statement, it's over for today. I hope you enjoyed the class. If you have any query, any doubt regarding the story, you can ask me without any hesitation. Next time we will meet with a new video very soon. Till then, keep studying, stay at home and be safe. Goodbye.